কেউ আসবে তোদের না তুই একা আছিস প্রতীক প্রধান? বাকি সব कोई नहीं आएगा? গার্গী লিভিং দেখছি একজন আছে পেরিয়ে গেল। ম্যাডাম আমি আর আপনি আছি ক্লাস করার জন্য। Yes, sir. Poti, can you hear me? यस मैम। Pratik, I am sharing with you one document, okay, that you have asked in the class, that the size of a frame. Okay, just try to go through it, then I will explain it to you. Okay? It will resolve your question. सायंतन केतन कुमार। Sir, বলুন। sir বলছি আমি একটু লাঞ্চের জন্য যাচ্ছি। হুম হুম ঠিক আছে ঠিক আছে। এই At a তিন- আসুক এরা দুজন তিনজন দেখছি আছে সব। বল সমিতা কি বলছিস? হয়ে গেছে সব অ্যাসাইনমেন্ট গুলো? অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সব হয়ে গেছে? হ্যাঁ 38। হয়েছে। हेलो प्रतीक प्रधान। सुमिता सुन पा रहे हो मेरा बात? ओके। असाइनमेंट हो गया लास्ट क्लास में जो मैम दी थी वो तुम्हारा? नहीं हुआ? हम अटेंड नहीं किए थे पिछला 2 क्लास सर अलग से। ओके 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 सब देरी है। ठीक है चलो। अच्छा मैम क्लास में रैपर क्लास शायद कुछ दिखाए थे तो रैपर क्लास का थोड़ा हम एग्जांपल दिखा रहे हैं ठीक है। रैपर क्लास স্যার আমাকে ডাকছিলেন? না স্যার আমার মাইকটা অন হচ্ছিল না তাই আমি কিছু বলতে পারছিলাম না। ডাকছিলাম মানে কালকে ম্যাম মানে কি একটা করিয়েছিল তো সেগুলো হয়েছে? হ্যাঁ স্যার করছিলাম, ওই PCA 2 এর ম্যাম বললেন অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করতে। তো হয়েছে? হ্যাঁ স্যার সব হয়নি, দু একটা করেছিলেন। একটা করেছিলিস? আচ্ছা এমনি বলতো ল্যাবে তোদের আর কি এমনি ডাউটস আছে কোনো টপিকের উপরে পার্টিকুলার যেগুলোকে আবার আবার ধরতে হবে এরকম কিছু জায়গা আছে? प्रतीक ऐसा कुछ मतलब टॉपिक है जिसमें लैब में अभी तक का जितना क्लास हुआ है एक्सेप्ट एप्लेट एंड वो तुम्हारा थ्रेड ये दोनों छोड़ के अप टू एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें कुछ टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है? আমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করছি। স্যার প্যাকেজটা একবার করিয়ে দেবেন। প্যাকেজ ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি এখন একটা ওই র‍্যাপার ক্লাসের একটা কনসেপ্ট দেখাচ্ছি তারপরে তোকে প্যাকেজটা দেখাচ্ছি। র‍্যাপার ক্লাস তোরা অফলাইনে আসছিস তো নাকি? হ্যাঁ স্যার যাবো। সেই তোরা তো মনে ফার্স্ট আসবি মনে কলেজে নাকি?
না স্যার আমরা তো 6 মাস গেছি কলেজ, ফার্স্ট ইয়ারটা গেছি তো। ফার্স্ট সেমটা করেছিলিস, ফার্স্ট সেম আর সেকেন্ড সেমের অর্ধেক করেছিলিস, হাফ। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সি wrapper class. What is wrapper class? Wrapper class is a basically Java's inbuilt class, which is basically used for convert primitive to object type or object to primitive, vice versa. That means primitive means जो already defined है, जो already inbuilt है, that means integer, float, character, these are the primitive data type in Java. And object means হচ্ছে string type. String is a class. Java में string basically क्या होता है, class होता है. So string, if we want to convert integer to string type, then we have to use this wrapper class. Or again, suppose we want to convert string to integer, then we have to use again the wrapper class. So there are some list of classes by which we can convert the using these classes. Basically we are converting the क्लास इंटीजर क्लास data कन्वर्ट type, like character class, byte class, b capital, integer, I हेलो capital. सर, हाँ बोल बोल रहे हैं स्ट्रिंग क्लास इंटीजर क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग क्लास बोलो, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया बात को। स्ट्रिंग क्लास इंटीजर क्लास में कन्वर्ट हो हाँ, जाएगा। कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली जावा बाय डिफॉल्ट एज ए इनपुट, जब तुम इनपुट ले रहे हो यूजर से, तो जावा बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग लेता है। सपोज तुम 1 2 3 इनपुट दे रहे हो स्कैनर क्लास के थ्रू या बफर रीडर क्लास के थ्रू, दैट वैल्यू, दैट इंटीजर वैल्यू 1 2 3 is in string type. So first you have to convert that string to integer type. sc dot next int, using that method we can already convert it into integer type. But if you want to if we use buffer reader class, okay, अगर तुम buffer reader class use करते हो, that you have to then उस टाइम में तुमको integer dot parse in करके तुमको convert करना होगा। बात समझ में आया? और अगर तुम कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू अगर तुम कुछ कर रहे हो, कमांड लाइन आर्गुमेंट हम दिखा रहे कुछ, नोट पैड, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू अगर तुम इनपुट लेना चाहते हो, उस सेम वहां पे भी तुम्हारा सेम कॉन्सेप्ट आएगा। सीआर भाई স্যার হয়েছে সমিতা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ওকে, দেন আমি এটা করছি। সাপোজ ইন্ট a equals to a of int b equals to a of 2. And c equals to a plus b, and सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पे CMG लाइन क्लास है, एंड विद इन सॉलिड स्टेट एनवायरनमेंट के अंदर हम बेसिकली वी आर यूजिंग दैट एरे
इस एरे को हम लोग यूज करेंगे। कैसे कैसे यूज होता है, उसी प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। दैट मींस व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम, एट दैट टाइम वी हैव टू गिव द इनपुट वाया सीएमडी, कमांड लाइन के थ्रू हम लोग इनपुट देंगे। एंड दैट एरे का वन पोजीशन, वन नहीं एक्चुअली ये जीरो होगा, जीरो, एंड ये वन नंबर पोजीशन में जो वैल्यू देंगे दैट वैल्यू स्टोर करेंगे लोकल वेरिएबल ए और बी के अंदर। देन वी हैव टू ऐड दैट वैल्यू एंड शो द आउटपुट। तो यही प्रोग्रामটা देखो क्या प्रॉब्लम दे रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है देखो। जावा সলভ করে দিল, ये সলভ হয়ে গেল। हाँ, कमांड लाइन तो नहीं दिखाई देगा शायद, हमने तो शेयर नहीं किए। स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, प्रोग्राम है डी ड्राइव cd java, ओके cd java, then java c cmd। দেখতে পাচ্ছিস তোরা? হ্যাঁ স্যার। প্রতীক প্রধান, Yes, sir. Yes, sir. see the error, see incompatible types, okay, string cannot be converted to int। समझे क्या एरर है? दैट मीन्स बेसिकली इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिंग टाइप एरे है, स्ट्रिंग टाइप एरे का वैल्यू को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा चलो, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करके अगर हम इसको स्ट्रिंग भी लगा देते, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए और यहाँ पे लिखे स्ट्रिंग बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को वैल्यू को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली हम वैल्यू देंगे क्या, इंटीजर वैल्यू देंगे। हाँ, इस एरे के अंदर से हम लोग वैल्यू देंगे, चाहे वो स्ट्रिंग एरे है लेकिन हम उसके अंदर से 1 2 3 4 ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू हम पास करेंगे। सो उस न्यूमेरिक वैल्यू को इनिशियली कहाँ पे, स्ट्रिंग के अंदर। सो अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू क्या, इंटीजर में, प्रिमिटिव टाइप में। तो फॉर दैट पर्पस इंटीजर डॉट parseInt। তো আছে তো, অভিক আছে তো ওখানে, ওই ল্যাব, হ্যাঁ খোলা আছে ওখানে, অভিক আছে, অভিক স্যার আছে। integer dot parseInt within bracket a, again same code for b। that means a जो स्ट्रिंग था, a जो स्ट्रिंग वैल्यू था उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, एंड सेम b को भी इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट एडिशन इज पॉसिबल, ओके। देन रिजल्ट स्टोर होगा c के अंदर, देन हम c को दिखाएंगे आउटपुट में। इस चीज को कंपाइल करते हैं, देखो कंपाइलेशन सक्सेसफुल, देन रन करेंगे, दैट इज जावा स्पेस फाइल नेम, देन हम यहाँ पे वैल्यू भेजे 11 and 22। दिस इज नोन एज कमांड लाइन। दैट मीन्स व्हेन वी आर रन द प्रोग्राम, रन का सिंटैक्स जब हम लोग दे रहे हैं, एट दैट टाइम हाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इनपुट देंगे और वो चला जाएगा। देखो सम इज 33, देख लो प्रोग्राम में, देखो क्या हुआ, दिस टू वैल्यूज 11 and 22 स्टोर इन द दिस डबल ए एरे। अब उस एरे का 0 पोजीशन का वैल्यू हम ए के अंदर स्टोर किए, अगेन हम 1 सेकंड वाला जो वैल्यू है, दैट मींस 1 पोजीशन 1 इंडेक्स, दैट वैल्यू स्टोर इन बी वैल्यू, बी वेरिएबल, देन कन्वर्टिंग इट इनटू integer type। that means here a and b is the object type, and now this line signifies that converting it into primitive type। so here integer is the wrapper class, that wrapper class का एक मेथड है in parseInt, ओके। parseInt के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट किए। और किसी प्रॉब्लम আছে प्रधान? Yes, sir. आवाज ना लो आ रहा है, तुम्हारा वॉइस थोड़ा
पार्स इंट जो यूज किए हैं, हाँ पार्सिंट यूज किए। काम का क्या है? पार्स इनका ही काम है वही कि तुम ये ए क्या है, इंटीजर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग से इंटीजर। पार्सिंट एक मेथड है जो मेथड बेसिकली इस रैपर क्लास के अंदर है। दिस मेथड बेसिकली प्रीडिफाइंड मेथड, ये मेथड प्रीडिफाइन है। रैपर क्लास जो भी प्रीडिफाइन है, जो बेसिकली जावा ने प्रोवाइड किया है हम लोग को, ये इस टाइप का कन्वर्सन करने के लिए, जैसे पार्स इंट है उसी तरह पार्स फ्लोट है, पार्स दिखा रहे, रुको हम यहाँ पे एडिशन किए तो मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग सपोज लिए हम क्या लेंगे, डी लेते हैं, तो डी के अंदर सपोज वैल्यू हम देंगे ए पोजीशन का सपोज थर्ड वाला वैल्यू, और ये हम क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे system.out.println करके। println आप क्या प्रिंट करेंगे, फ्लोट डॉट फ्लोट ब्रैकेट में कौन सा वैल्यू है, डी है, डी सपोज हम भेजेंगे एक ये फ्लोट टाइप का वैल्यू भेजेंगे। इसे कंपाइल करते फिर से, देन हम इसके बाद भेजते हैं 1.5 1.3, ये फ्लोट वैल्यू है। देखो अगर हम ये कन्वर्ट नहीं करते, फिर भी 3.1 पॉइंट जो भी है दिखाता, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग दिखाता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ डी प्रेस करते, डी दिखाते, फिर भी वो दिखाता, सेम आउटपुट भी दिखाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो दिखाता सिर्फ एज ए स्ट्रिंग। ये जो 1.3 देख रहे हो ये एज ए स्ट्रिंग दिखाएगा, प्रिमिटिव टाइप नहीं। तो प्रिमिटिव तो टाइप, पार्स इंट फ्लोट जो भी है सर, मतलब पार्टिकुलर क्लास में कन्वर्ट कर देता है, यही है ना? हाँ टाइप में कन्वर्ट करता है, टाइप में, क्लास में नहीं, टाइप में, प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट हो रहा है ये इधर। जैसे ये क्या है, सी क्या है, इंटीजर है, अगर हम चाहते हैं इसको हम स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, इस सी को हम लोग स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, सी क्या है, सी इंटीजर है, तो हम लोग क्या किए, स्ट्रिंग सपोज str बोल के लिए इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में भेजेंगे सी को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस स्ट्रिंग को हम लोग, मतलब ये जो इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप जो टाइप है, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, करने के बाद स्ट्रिंग में स्टोर किया, str में स्टोर हुआ। हाँ हमारा वॉइस बहुत लो आ रहा है, नहीं सुना दे रहा बात। ये तो ऑटो बॉक्सिंग का सर पार्ट हो गया। हाँ ऑटो बॉक्सिंग इनबॉक्सिंग, हाँ उसी का पार्ट है। तो ये पॉसिबल है यूजिंग रैपर क्लास के थ्रू। हाँ तो सर टाइप में थोड़ी ना हो रहा, क्लास में हो रहा है। ये क्लास में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो बैकवर्ड हम बोले, वाइस वर्सा, यहाँ पे जो हो रहा था उसका रिवर्स प्रोसेस हम यहाँ पे किए, इसमें क्लास में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, अच्छा और कुछ किसी का प्रॉब्लम इसमें रैपर क्लास में? সমিতা বুঝতে পেরেছিস? গার্গী, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। সায়ন্তন, অনয় আছিস? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওকে
আচ্ছা হ্যাঁ, এটা কি বলি, কিসে ডাউটস বলছিলিস? প্যাকেজ। হ্যাঁ স্যার একটু দেখিয়ে দিন প্যাকেজটা। ওকে, প্যাকেজের প্রোগ্রাম আমি আগেরটাই করেছিলাম না? প্যাকেজ, হ্যাঁ সিএসসি ছিল তো। ওকে, দেখ বেসিক্যালি প্যাকেজ কনসেপ্টটা কি? প্যাকেজ ইজ দ্য কন্টেনার, হ্যাঁ, where you can basically put some similar type of classes, interfaces and sub package also। हाँ, एक फोल्डर होवे এটা, हाँ, ये कॉन्सेप्ट इज लाइक ए फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ चीज रखते हैं। जैसे पिक्चर बोल के एक फोल्डर है, मूवी बोल के एक फोल्डर है, उसमें क्या है, सिमिलर टाइप, मतलब मूवी होगा, हाँ, या उसके बाद पिक्चर होगा, ये सब। तो सेम थिंग हियर, अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्लास एक ही जगह में हम रखना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज पैकेज। और एक चीज, इफ वी वांट टू नेम सेम नेम इन डिफरेंट क्लास, सपोज ए डॉट जावा, हम लोग दो प्रोग्राम बनाएंगे, ए क्लास से दो प्रोग्राम बनाएंगे। सो सेम पैकेज के अंदर, मतलब सेम लोकेशन के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मल्टीपल, जैसे एक क्लास के अंदर मल्टीपल सेम नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता, उसी तरह ये भी सेम लोकेशन में मोर देन वन सेम नाम का क्लास नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग तब पैकेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। So first, to create the package, first you have to write the package keyword, after that the package name। Okay, CSC is the package name। আচ্ছা, প্রথমে এটাগুলো ধর ডিলিট করে দিচ্ছি, তাতে নিউ করে হবে আবার। So initially, হ্যাঁ, package name is CSC। after that एक क्लास डिफाइन किया हम यहाँ पे, क्लास A। जस्ट उसके अंदर एक ही मेथड है, हाँ, void show within CSC, shows the output like within CSC। बस इस क्लास को हम सेव किए a डॉट जावा देके, क्लास को सेव किए a डॉट जावा देके, देन इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे। सो कंपाइल करने का सिंटैक्स थोड़ा अलग है। सो कंपाइल करने के लिए क्या होगा, जावा सी स्पेस -d फॉर डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, कहाँ पे, व्हिच लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन, दैट इज वाई डॉट, डॉट मीन्स करंट लोकेशन, करंट लोकेशन जहाँ पे a डॉट जावा है उसी लोकेशन में एक फोल्डर क्रिएट होगा, एंड क्लास नेम इज a डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल करो। आफ्टर कंपाइलिंग सी, अगेन CSC फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो जिस तरह से लिखोगे, हाँ, स्मॉल या कैपिटल जो भी है, सेम नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, एंड विद इन दैट फोल्डर a डॉट क्लास, उसका फोल्डर क्लास फाइल यहाँ पे आ जाएगा विद इन दैट पैकेज। अगेन उस क्लास को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे जगह से, तो अगेन हमें और एक क्लास बनाए जिसका नाम है बी। वहां पे हम क्या किए, और एक पैकेज बनाए, क्लास EC बोल के और एक पैकेज बनाए। देन इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज किए। इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्या होता है, बेसिकली CSC क्लास, CSC पैकेज के अंदर जो क्लास है, उस क्लास को हम लोग इस क्लास के अंदर हम लोग यूज करेंगे। जैसे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, दैट मीन्स क्या, यूटिल पैकेज के अंदर जितना भी क्लासेस है सब हम लोग यूज करेंगे, या स्पेसिफाई कर देंगे यूटिल डॉट स्कैनर, ऐसा भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो कोई भी एक प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे CSC डॉट A डॉट स्टार, दैट मीन्स ए क्लास के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है सब हम लोग इस क्लास के अंदर लाएंगे। नेक्स्ट बी क्लास, अंडर दैट पल्सरी वॉइड मेन, देन क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ए क्लास कहाँ पे है, दूसरे पैकेज में CSC फोल्डर के अंदर, देन ओबी डॉट शो। ठीक है, क्लास को हम क्लोज किए। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, देन कंपाइल करो। कंपाइल करने का प्रोसीजर सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ क्लास बी डॉट जावा।
अगेन अच्छा एरर है क्या, फाइंड द सिंबल ए কেন ওকে এ পাবলিক করা আছে তো অল আর পাবলিক আচ্ছা তাহলে এখানে করতে হবে csc डॉट ए csc डॉट csc क्लासेर ए सर कंपाइल के वक्त नहीं दिए थे सर, क्या नहीं दिए थे, कंपाइल के वक्त पैकेज का नेम नहीं दिए थे, कंपाइल के टाइम में पैकेज का नाम नहीं दिए थे। इसलिए आया। हाँ कंपाइल तो हम बी क्लास को कर रहे थे तो वहाँ पे पैकेज तो क्रिएट ही नहीं होगा, क्रिएट नहीं हुआ तो अभी तक। ये जो ए क्लास का जब हम कंपाइल किए थे जावा सी माइनस डी डॉट ए डॉट जावा तब तो हम पैकेज का नाम नहीं दिए थे। सर ये पैकेज इसी वाले को सर रन तो क्या नाम देंगे, क्या क्या लिखेंगे बोलो। इसके रनिंग के समय पहला पैकेज का नाम डॉट तब आगे कीजिएगा ना सर, जावा सी माइनस डी डॉट क्या देंगे बोलो? जावा CSC डॉट जावा सीएससी। जावा रन करते समय सर दीजिएगा ना सर। रन तो अभी नहीं कर रहे, हम तो पहले इस क्लास को कंपाइल करेंगे ना, कंपाइल करने के बाद ये पैकेज क्रिएट होगा तब जाके रन करेंगे। अभी हम बी क्लास को कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं नॉट रन। क्या लिखेंगे बोलो? सेम कोड ठीक है। देखो इसी के अंदर आ गया, इसी के अंदर बी डॉट क्लास फाइल आ गया है। अब रन करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा स्पेस ECE डॉट बी, क्योंकि हम लोग बी क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे और बी क्लास के अंदर क्या है, बी क्लास के अंदर है ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग शो मेथड को दिखाएंगे। दैट मीन्स ए क्लास के अंदर जो शो मेथड है क्या लिखा है विद इन CSC, ये वाला आउटपुट एक्चुअली आएगा। So when we run, then we have to use that package name dot class name. ठीक है बिना जो इसी पैकेज को सर हटा के रन कराइए तो इसी पैकेज को ऐसे बी को, जरूरी थोड़ी है सर, इसी पैकेज बनाएंगे तब इंपोर्ट होगा। हाँ इसी पैकेज, सर हटा दीजिए। हाँ ऐसे जावा और बी लिखेंगे तो नहीं सर, जो आप इसी पैकेज जो सेकंड बनाया जिसमें इंपोर्ट करा है तो जरूरी है सर पैकेज इसी बनाना जरूरी है। नहीं, हम जो जिस तरह से एग्जांपल दिखा रहे थे उसमें हम दिखा रहे थे दो अलग अलग पैकेज है, ठीक है, दो अलग अलग पैकेज है। सेकंड पैकेज नहीं बनाए तो नहीं बना सकते हो, एक बार कीजिए तो सर। तो क्या लिखेंगे, ये पैकेज को हटा देंगे तो ये लाइन को हटा देंगे। यस सर, और रन कराइएगा सर। तब तुम्हारा हाँ ये इसी का जरूरत नहीं होगा तब। कमांड लाइन में ओनली जावा स्पेस डी, ठीक है। लेकिन हम जो एग्जांपल दिखा रहे थे वो क्या था, वो था ये फोल्डर के अंदर क्लास है और एक फोल्डर है EC, उसके अंदर भी एक क्लास है। सो वी कैन एक्सेस फ्रॉम दिस पैकेज टू दिस पैकेज। और अभी क्या हुआ, अभी बेसिकली हुआ एक पैकेज ऑलरेडी CSC बोल के पैकेज है और हम लोग जो नॉर्मल जहाँ पे प्रोग्राम सेव करते हैं, मतलब जावा, मेरा लोकल डिस्क में जो जावा फोल्डर है उसी फोल्डर के थ्रू हम लोग इस पैकेज को एक्सेस कर रहे हैं। समझ रहे हो, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो तुम
किसी भी वे में तुम एक्सेस कर सकते हो, बट सिंटैक्स यही होगा। अगर तुम दूसरे पैकेज से दूसरे पैकेज को एक्सेस करो, देन व्हेन यू रन, देन यू हैव टू राइट द पैकेज नेम आफ्टर दैट क्लास नेम pc.b। बट अगर b को तुम लोकली रख रहे हो, मतलब किसी पैकेज के अंदर नहीं, इसलिए देखो यहाँ पे b डॉट क्लास फाइल भी है। ये देखो b डॉट क्लास फाइल कहाँ पे है, इस जावा फोल्डर के अंदर, मतलब जहाँ पे तुम प्रेजेंटली कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हो। बट हम जब प्रोग्राम रन कर रहे थे तब देखो इसी का b क्लास फाइल इसी के अंदर है, इसलिए हमको इसी डॉट बी देके रन करना पड़ता है। डिफरेंशिएट समझ में आया तुम्हारा? अच्छा, और एनी डाउट्स एनी टॉपिक में अभी तक जितना हुआ है लैब में? আর না থাকলে তাহলে অ্যাসাইন ম্যাম যেটা দিয়েছিল সেটা তাহলে স্টার্ট কর, যেগুলো পেন্ডিং আছে। कितना दूर हुआ था, कितना दूर किए थे? অনয় কটা করেছিস প্রোগ্রাম? আছিস না বেরিয়ে গেছিস? অনয় নেই। प्रतीक कितना पढ़े तुम? और तुम तो क्लास अटेंड नहीं किए बोल रहे थे 2-3 दिन से। ओके, আচ্ছা, কারো কোনো টপিকের উপর প্রবলেম আছে? দীপাঞ্জন, দীপাঞ্জন, মিথিলেশ, গার্গী, সায়ন্তন, ওয়েসি, সৌরভ, অনিশা, অঙ্কিতা, কারো প্রবলেম নেই? শিবদাস, সৌভিক, গৌতম, আর রেসপন্স দো। দীপাঞ্জন, সৌমিতা, শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। मेथड का सर बताइएगा सर। हाँ, कौन सा? तुम्हारा वॉइस बहुत लो आ रहा है, तुम किससे कथा बात कर रहे हो, मतलब हेडफोन से? यस सर। हाँ, ठीक सामने कथा बोलो, कौन सा टॉपिक बोल रहे थे? सर रैपर क्लास का 2 स्ट्रिंग मेथड सर। 2 स्ट्रिंग। यस सर। हाँ, इसको भी तुम बना सकते हो, वैल्यू ऑफ या 2 स्ट्रिंग से भी कर सकते हो। 2 स्ट्रिंग का काम होता है सेम स्ट्रिंग में कन्वर्सन, प्रिमिटिव टाइप में। अच्छा, एक प्रोग्राम करके दिखाएंगे। क्लास देख पा रहे हो प्रोग्राम? देखते পাচ্ছিস ये? না স্যার। কেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, ये ऑफ हो गया ना। ओके,
देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हम नेट से कॉपी पेस्ट किए बेसिकली। स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास, देयर आर 3 क्लास वेरिएबल, रोल नंबर, नेम और सिटी। देन ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर टू वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज किए, ठीक है। दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट नेम और दिस डॉट सिटी। आफ्टर दैट मेन के अंदर क्या किए, दो ऑब्जेक्ट हम डिफाइन किए, दो ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन किए। ट्रेन छाड़ लो। हाँ, तो ऑब्जेक्ट बनाए S1 एंड S2, दो ऑब्जेक्ट, दोनों का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। 101 राज लखनऊ और 102 विजय गाजियाबाद। आफ्टर दैट जब हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, S1 को जब प्रिंट करेंगे तो S1 के अंदर क्या क्या वैल्यू है, डिफरेंट टाइप वैल्यू है, दो स्ट्रिंग, वन इंटीजर टाइप। तो तीनों को ही बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। स्ट्रिंग में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। देखो इसमें इसलिए लिखा है S1.to स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या है, टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक मेथड है। अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली टू प्रोवाइड द मेथड। इसका काम क्या होगा, इसका स्ट्रिंग में कन्वर्सन। या इस कोड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे। देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग ओवरराइड किए, ओवरराइड, ठीक है। मतलब फिर से हम उसको बॉडी दिए, एंड बॉडी में हम लोग क्या लिखे, रिटर्न रोल नंबर स्पेस, मतलब कॉन्कैटिनेशन किए, नेम कॉन्कैटिनेशन सिटी, मतलब सेम आउटपुट, आउटपुट तुम्हारा सेम आएगा। पर इसका काम क्या है, इसका काम है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। क्या क्या किस में किस किस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, जो तीनों क्लास वेरिएबल है। ऑलरेडी सिटी और नेम तो स्ट्रिंग टाइप है, और रोल नंबर भी, इसको भी हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, स्टूडेंट डॉट जावा। देखो तो यहाँ से बेसिकली इस, जब हम लोग इसको रन करेंगे, मतलब सॉरी ये SOPLN जब सिस्टम डॉट प्रिंटलन जब कॉल होगा इस S1 को, कंट्रोलर ऑटोमेटिकली इस मेथड के अंदर आ जाएगा। अगर रुको, अगर हम यहाँ पे कुछ कुछ अलग सा कुछ प्रिंट करते हैं तो वो फर्स्ट में कॉल होगा। ठीक है, ऐसे इनसाइड मेथड ऐसे दिखाएगा, देन रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक, देखो कहाँ से कॉल हुआ, यहाँ पे S1 जब हम कॉल कर रहे थे, S1 को जब आउटपुट दिखा रहे थे तब फर्स्ट चला गया टू स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे जाके फर्स्ट दिखा इनसाइड द मेथड, देन कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग टाइप। टू स्ट्रिंग मेथड में स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो गया, उसका आउटपुट दिखा दिए, देन अगेन चीज यहाँ एग्जीक्यूट हुआ। और राइट नहीं कर दे तो कर देते, वो अपने से कर देगा। ओवरराइड अगर नहीं भी करते हो, हम उसको ऑफ कर दिया। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का, सॉरी हाँ, यहाँ पे जो दिखा रहा है ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिखा रहा है। स्टूडेंट क्लास का ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस, सेकंड ऑब्जेक्ट का एड्रेस।
ठीक है, टू स्ट्रिंग से क्या होगा, इसका स्ट्रिंग में कन्वर्सन, ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू है उसको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे टू स्ट्रिंग में दिखाएगा, रिटर्न करेगा वो वैल्यू को स्ट्रिंग में। एक प्रोग्राम रन करके देख लेना सब। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास होगा, स्टार्टेड होगा, और शायद लैब क्लास भी ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन क्लास मतलब ऑनलाइन तो ऑप्शन नहीं है, आज ही शायद लास्ट है लैब क्लास। तो नेक्स्ट वीक से जब आओगे लैब का कॉपी भी तुम लोग को बनाना होगा ऑफलाइन क्लास के लिए, क्योंकि इस बार एग्जाम, लैब एग्जाम तो ऑफलाइन ही होगा। तो लैब कॉपी जब आओगे हम बोल देंगे कैसे क्रिएट करना होगा। लास्ट ईयर का जो है स्टूडेंट लोग है उसका फाइल कॉपी दिखा देंगे, जितना भी हम लोग लैब में प्रॉब्लम सॉल्व किए, हाँ, सब टॉपिक के ऊपर जितना भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए, इसलिए हम बोल रहे थे एक नोट डाउन करके रखना। मेरे पास है, देखेंगे कौन कौन सा लिस्ट है। तो वो सब प्रोग्राम तुमको हैंड रिटन लिख के जमा करना होगा असाइनमेंट, ठीक है। लैब कॉपी के ऊपर भी मार्क्स है, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब लैब कॉपी के ऊपर मार्क्स होता है, असाइनमेंट के ऊपर मार्क्स होता है, मतलब PCA 1 PCA 2, हाँ, और तुम्हारा जो लैब एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो तब का ही मार्क्स होगा, और वाइवा होगा। इस चारों को मिला के बेसिकली लैब का 100 मार्क्स में तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। বুঝতে পেরেছি সবাই? Yes, sir. ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। मैम আপনি নিয়েছেন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিয়েছেন স্বপ্না ম্যাম? আচ্ছা ম্যামকে বলে দিই। ठीक है, अटेंडेंस हो गया है, ठीक है, तुम लोग क्विट कर सकते हो।